नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर पुलिस ने विभिन्न चोरी के 6 मामले सुलझाए और 7 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। केंद्रीय संस्थानों से चावल खरीदने का प्रयास, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। हम कर्नाटका को कुछ दिनों में बुरी आत्माओं से मुक्त कर देंगे, प्रियांक खरगे। धारवाड़ वासियों का यह पुराना सपना है, उस ट्रेन में सवार होना सपना था। आखिरकार धारवाड़ वासियों का सपना साकार हो ही गया। बेलगाम की तरह उडुपी भी पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। अगर बारिश नहीं हुई बहुत मुश्किल होगी, लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। चन्नाबसवन्ना आईपीएस महेश मेघनावर अतिरिक्त एसपी बीदर जिले की देखरेख में सतीश टीएसपी के मार्गदर्शन में बीदर मार्केट टाउन, बीदर न्यू टाउन, बीदर रूरल टाउन पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए चोरों से 7 लाख कीमती सामग्री जब्त की गई है। गिरफ्तार लोगों के पास से जेवरात समेत कई सामान बरामद हुए हैं। पता चला है कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति विभिन्न मामलों में वांछित थे। शहर में बढ़ रही चोरी को दबाने के लिए पुलिस कई दिनों से गिरफ्तार आरोपियों पर नजर रख रही थी। एक आरोपी के पास से 1 कार व 4 बाइक बरामद की गई हैं। दूसरे के पास से 6 बाइकें जब्त की गई हैं। एक चोर के पास से 18 ग्राम चांदी के जेवरात और 2 टेलरिंग मशीन जब्त की गई हैं। एसपी चन्नाबसवन्ना लंगोटी के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया और इसमें भाग लेने वालों का अभिनंदन किया गया। और बीदर एसपी ने कहा कि आज 2 हत्या के मामले भी दर्ज किए गए हैं और दोनों की जांच की जा रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ खुसरो अहमद, केपी न्यूज बीदर। अपराधಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀದರ್ सब डिविजन न्यू टाउन पुलिस स्टेशन ಮತ್ತು मार्केट पुलिस स्टेशन ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ पुलिस स्टेशन ಈ 3 पुलिस स्टेशन ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ पुलिस स्टेशन ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಡಳ್ಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು। ಆ ಕಾರ್ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ 4 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ। ಜೊತೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಕೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವನಿಂದ 10,000 ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ ಥೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಬರಿನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 2 ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಒಟ್ಟು 3,36,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ पुलिस ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪುಲ್ಲಯ್ಯ ರಾಠೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, UGD ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗಿರೋದು। ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ KDP ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ। ಅದರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗಿದೆ। ಎರಡನೇದು ಈ ಮಾಲ್ಗಳದ್ದೇನಿದೆ, ನಾನು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, GV ಮಾಲ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗದ್ದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ।
ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈಗೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಒನ್ ಡೇ ಈ ಕಡೆ ಆಡ್ ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. केंद्र सरकार ने राज्य को दिया 5 किलो चावल को छोड़कर 10 किलो। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को राज्य के राशन कार्ड धारकों को अधिशेष चावल देना चाहिए। सोमवार को शहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य के प्रत्येक राशन कर्मचारी को 5-5 किलो चावल प्रदान करेगी, जैसा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था। 10 किलोग्राम कुल 15 किलो जोड़े उसने चावल देने की मांग की। इससे पहले जब सिद्धरामैया राज्य के मुख्यमंत्री थे तब केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने भी चावल नहीं दिया था। शायद वे इसे भूल गए। दी गई गारंटी पूरी होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि वे इसे पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी विफलताओं को ढकने के लिए उंगली उठाने का आरोप लगाया। समाज में अशांति पैदा करने और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए धर्मांतर निषेध अधिनियम को वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीतिक द्वेष के लिए पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण का मुद्दा शुरू किया है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सिद्धरामैया इस राज्य के 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं या 5 साल। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार, उन्होंने यह जानने की मांग की कि शिवकुमार के बीच किस तरह का समझौता हुआ है। मानसून के मौसम में राज्य में उर्वरक की कोई कमी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सभी जगह आवश्यक सूची बना ली गई है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। 2014ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 81 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಏರ್ವೇಸ್ಗಳು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸುಶಾಸನ, ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಥೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿ ಕೊಡುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಅದರದೇ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಗದಿಯನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ,
ಮತ್ತು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಕಾಸ ತೀರ್ಥ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿವಸವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ. धारवाड़ वासियों का यह पुराना सपना था। आखिरकार धारवाड़ियों का सपना आज साकार हो ही गया। वह ट्रेन विद्याकाशी धारवाड़ पहुंच गई। धारवाड़ और बेंगलोर के बीच राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित वंदे भारत ट्रेन चलने की अफवाहें लंबे समय से सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन ने आखिरकार धारवाड़ आकर इस क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट कर ही दिया है। वंदे भारत ट्रेन 28 जून से धारवाड़ और बेंगलुरु के बीच चलेगी। वंदे भारत ट्रेन अपनी तैयारी के लिए ट्रायल रन के तौर पर बेंगलुरु से धारवाड़ पहुंची थी। जैसे ही ट्रेन आ रही थी, धारवाड़ के लोग ट्रेन के आगे खड़े हो गए और सेल्फी लेने लगे। इस ट्रेन को ट्रायल बेसिस पर चलाया गया है और ये किस स्टेशन पर रुकेगी? दक्षिण पश्चिम रेलवे मंडल के महाप्रबंधक रंजीत किशोर ने कहा कि हर चीज का परीक्षण किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से धारवाड़ के लिए 5:45 पर रवाना हुई। 12:55 पर धारवाड़ पहुंचा। हालांकि ट्रेन निर्धारित समय से 1 घंटे पहले धारवाड़ पहुंच गई। इस ट्रेन में अच्छी तरह से सुसज्जित सीटें, एसी सिस्टम और अच्छी तरह से बनाए रखा ट्रेन है। कुल मिलाकर धारवाड़ के लोगों का धारवाड़ से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने का सपना पूरा हो ही गया। वंदे भारत ट्रेन आज विद्याकाशी और पेड़ानगर पहुंच गई है और धारवाड़ के लोग बहुत खुश हैं। केपी न्यूज से हिना शेख की रिपोर्ट। कितने बजे निकला था ये वंदे भारत ट्रेन 5:45 आज सुबह टुडे मॉर्निंग इट लेफ्ट बैंगलोर सिटी स्टेशन KSR स्टेशन at 5:45 in the morning, and our entire technical team of officers, supervisors and staff accompanied the train. The trial run has been successful. We have checked all aspects. We have checked its acceleration. We have checked the performance of the overhead equipment. The railway electrification has been recently completed between Bangalore and Hubli. So all those things were required to be tested. We have also tested the braking of the train, and the entire team is very happy with their experience of the trial run. नहीं, वो देखिए अभी ट्रायल रन है, तो ट्रायल रन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमर्शियल रन से डिफरेंट होती हैं। तो एक रन के बेसिस पे अभी हम लोग कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। आज हम लोगों ने, क्योंकि ट्रायल था इसलिए स्पेशली ट्रीट किया इसको, और सब लोग थे, हम लोग चला के देखना चाह रहे थे। तो लेकिन टाइमिंग्स के बारे में एक रन के बेसिस पे कोई कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं होगा। ये अभी आपको जल्दी सूचित करेंगे, जैसे ही अभी हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको सूचना प्राप्त होगी। कितने स्टेशन रहेंगे सर इसको हुबली होने के अभी बाद? वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम बता पाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन बोर्ड और भारतीय खाद्य निगम सहित केंद्रीय संगठनों से अन्न भाग्य योजना के लिए आवश्यक चावल खरीदने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, FCI 334 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराएगी। 336.60 प्रति किलोग्राम यदि 72.6 की माल ढुलाई लागत शामिल है। अब तीनों संस्थानों से मूल्य सूची मंगाकर टेंडर के माध्यम से चावल खरीदने की कार्यवाही की जाएगी।
अब अन्नभाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल मिलेगा। चावल वितरण करते हुए साथ ही मक्का और बाजरा वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि 2-2 किलोग्राम मक्का या बाजरा बांटा भी जाए, 6 माह का ही पर्याप्त स्टॉक है। शेष 3 किलोग्राम उसने कहा कि उसे चावल खरीदना होगा। अन्नभाग्य योजना के तहत 10-10 किलो चावल वितरण के लिए प्रतिमाह 1,842 करोड़। सिद्धरामैया ने बताया कि प्रतिवर्ष 7,10,052 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एफसीआई के पास चावल का स्टॉक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ व्यवस्था में सहयोग करने वाली केंद्र सरकार गरीब हितैषी योजनाओं के मामले में नफरत की राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एफसीआई के पास चावल का स्टॉक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ व्यवस्था में सहयोग करने वाली केंद्र सरकार गरीब हितैषी योजनाओं के मामले में नफरत की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1.5 लाख टन चावल का भंडार है, वह काफी नहीं है, इसलिए पंजाब राज्य से चावल खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से चर्चा कर रहे हैं। मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि कर्नाटक कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, ज्ञानेंद्र बीजेपी बुरी ताकतों का घर क्यों है? पूछा कि वैसे रवि कुमार से पूछिए कि कलबुर्गी में रेत माफिया के नाम पर कांस्टेबल को मारने वाला आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं। वे उस खलनायक के बारे में बात क्यों नहीं करते जिसने आपके ही तीर्थहल्ली में छात्रों को धोखा दिया और ब्लैकमेल किया। पूछा कि उन्होंने कहा हमारी सरकार को आए 1 महीना हो गया है, कुछ दिनों में हम न केवल कलबुर्गी में बल्कि कर्नाटक में भी बुरी आत्माओं को मुक्त कर देंगे। कलबुर्गी में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने न केवल एक कांस्टेबल की हत्या की बल्कि उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर वे उसे उबारने की कोशिश नहीं करते तो यह काफी नहीं है। यही वह एहसान है जो वे कर्नाटक पर कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया, ज्ञानेंद्र बीजेपी बुरी ताकतों का घर क्यों है? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है।
यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। शिक्षकों के तबादले के खिलाफ छात्रों ने स्कूल पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि छात्र ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों का तबादला हो। यह घटना उडुपी के कोडी बेंगरे सरकारी सीनियर प्राइमरी स्कूल की है। इससे पता चलता है कि छात्र उस शिक्षक से कितना प्यार करते थे। यह 3 शिक्षकों वाला एक स्कूल था, लेकिन अब वे एक का तबादला करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षक के लिए छात्रों ने विरोध क्यों किया। स्कूल में 3 शिक्षक हैं और वर्तमान में शिक्षा विभाग एक शिक्षक का तबादला करने को तैयार है और उसे नहीं पता है कि छात्रों को कैसे खुश किया जाए। शिक्षकों के तबादले का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे शिक्षक को किसी भी कारण से दूसरे स्कूल में नहीं जाने देंगे। पूर्व विधायक सांसद रेणुकाचार्य स्टेशन पर खड़े होकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं
कि सभी सुरक्षित रूप से बस में सवार हो। खुनाली में देखा गया यह दृश्य निश्चित रूप से सरकार द्वारा लागू की गई बिजली योजना का प्रभाव नहीं है। स्कूल और कॉलेज का समय समाप्त होने के बाद सभी तालुका और होबली बस स्टॉप पर ऐसा दृश्य देखा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि बस में सवारियों की संख्या अधिक है। सभी सुरक्षित बस में सवार हो जाए, इसके लिए पूर्व विधायक सांसद रेणुकाचार्य स्टेशन पर खड़े हैं। रेणुकाचार्य जो एक चालक के रूप में गुस्से में है, बस को चलाने लगते हैं, जबकि लोग अभी भी सवार होते हैं, कैबिन में जाते हैं और उसे डांटते हैं। शहर में मीडिया से मुखातिब हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि मानसून देरी से आने के कारण पीने के पानी की किल्लत हो रही है। मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 7 दिनों में मानसून और तेज होगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो। हेबालकर ने कहा कि बेलगाम के जलाशयों में पानी का स्तर नीचे चला गया है और जहां पानी की समस्या है वहां टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि उडुपी जिले में भी पानी की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि टैंकरों से पानी की आपूर्ति करना ज्यादा समय नहीं है और रेन राया की कृपया के बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राज्य में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने की गृह ज्योति योजना रविवार से शुरू हो गई है। हालांकि तकनीकी कारणों से कल आवेदन जमा नहीं किया जा सका। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने बताया कि सोमवार से अभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन गृह ज्योति योजना के आवेदन जमा करने में भी आज देरी हो रही है। गृह ज्योति आवेदन के लिए हुद्रे की वेबसाइट नहीं खुल रही है। गृह ज्योति आवेदन जमा करने में आज भी त्रुटि पाई गई। एमजी रोड पर बेस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालय में फिर से एक त्रुटि है। वेबसाइट स्लो होने के कारण आवेदन जमा करने में दिक्कत आ रही थी। निरीक्षण एईई अधीक्षण यंत्री पूर्व परिमंडल द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग आवेदन कर सकते हैं। रविवार को वेबसाइट नहीं खुली थी, आज वेबसाइट खुली है और आवेदन भी खुला है। आवेदन भरने के बाद आगे के विकल्प नहीं खुले हैं। कुछ आवेदन पत्र भी नहीं भर पा रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि आवेदन भरने के बाद वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। सर्वर डाउन होने के कारण लोग एक साथ आवेदन जमा करने आ गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि टेक्निकल समस्या को हल करने के लिए काम चल रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर पुलिस ने विभिन्न चोरी के 6 मामले सुलझाए और 7 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। केंद्रीय संस्थानों से चावल खरीदने का प्रयास, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। हम कर्नाटक को कुछ दिनों में बुरी आत्माओं से मुक्त कर देंगे, प्रियांक खरगे। धारवाड़ वासियों का यह पुराना सपना है, उस ट्रेन में सवार होना सपना था। आखिरकार धारवाड़ वासियों का सपना साकार हो ही गया। बेलगाम की तरह उडुपी भी पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। अगर बारिश नहीं हुई बहुत मुश्किल होगी, लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।